In previous lecture, we discussed that the experimental method or the experiment has high internal validity, but its external validity is low and it is subject to criticism of rather limitations of the experimental method or फिर experiment or फिर laboratory experiment. In this part, we shall discuss about the validity of experiment. I shall refer you a lecture which is already uploaded. Test construction and standardization. And that is a very comprehensive lecture regarding reliability and validity. You must be knowing that a test construction has some technical criteria, and reliability, validity, etc. are the technical criteria of test standardization, and that cannot be sacrificed. But in research also, the validity is very important. आप आम जीवन में भी देखोगे कि इस आदमी की कोई वैलिडिटी नहीं, इस आदमी को कोई रिलायबिलिटी नहीं। रिलायबिलिटी के लिए उसमें देखेंगे, उस लेक्चर में रखा हुआ भी है। यदि हम एक की कंसेप्ट रखें तो इसको हम लोग कहेंगे रिलायबिलिटी इज टू कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी इज टू पर्पसफुलनेस। मतलब the test for which purpose is being developed, rather a test for what purpose is developed is fulfilled, that the test is reliable, otherwise it is non reliable. तो रिलायबिलिटी का मतलब है जिस काम के लिए कोई टेस्ट आप बनाते हैं, जिस काम के लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का जो उद्देश्य है वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। यदि अचीव हो गया तो वो वैलिड है, यदि अचीव नहीं हुआ, पर्पस सोल्व नहीं हुआ, तो वैलिड नहीं है। तो एक तो वैलिडिटी को समझना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली इन कंटेक्स्ट ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन। सो reliability, validity separately in due length is not the requirement here, it is not the scope of the lecture. The purpose is to know to know the validity of an experiment, or you can also say laboratory experiment and experimental method and like that. So validity is an important concept in measurement and also in experimental situation. In experimental situation, validity is related to control of secondary variables. So here the meaning of validity, the purpose of validity is to control the secondary variables. क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा पर्पस है कि हम जो एक्सपेरिमेंट करें उसमें जो संबंध हमें मिले, जो प्रतिफल हमें मिले, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं। दैट मस्ट बी द इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, वैलिडिटी इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी वेरिएबल्स। मोर द सेकेंडरी वेरिएशन दैट स्लिप्स इनटू एन एक्सपेरिमेंटेशन, greater is the possibility that the independent variable was not wholly responsible for dependent variable changes. हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं कि स्वतंत्र चर में होने वाले, किए जाने वाले परिवर्तन का प्रभाव हम अध्ययन कर सकें आश्रित चर, और इसके बीच में जो चर है जिसको हमने सेकेंडरी कहा, यदि वो उस बीच में आके इस रिजल्ट को प्रभावित करता है
तो यह किस चीज से संबंधित है? आपका वैलिडिटी से। और वैलिडिटी, the secondary variation that slips into the investigation greater is the possibility that the independent variable was not wholly responsible for the, मतलब जो चेंज है वो हम नहीं कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण ही है। सेकेंडरी और एक्सट्रेनियस वेरिएशन influence the dependent variable to an extent where the conclusions drawn become invalid। मतलब ये जितना ज़्यादा प्रभावित होगा उन दोनों के बीच का प्योर रिलेशनशिप, अनकंटेमिनेटेड रिलेशनशिप, उतना ही ज़्यादा ये माना जाएगा कि टेस्ट की वैलिडिटी अंडरमाइन हुई है, क्योंकि जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हुआ है। सो इन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन द वैलिडिटी प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब दो तरह की वैलिडिटी की बात हम लोग करते हैं, एक इंटरनल वैलिडिटी और दूसरी एक्सटर्नल वैलिडिटी। वैसे आप समझ चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। सो इंटरनल वैलिडिटी इज बेसिक मिनिमम without which the outcome of any experiment is uninterpretable. It is concerned with making certain that the independent variable manipulated in the experiment was responsible for the variation in dependent variable। मतलब एक्सपेरिमेंट के क्रम में, प्रयोग किए जाने के क्रम में जो आपका सेटअप है, जो आपकी व्यवस्था है, जो आपका प्रभाव बाहरी यदि कोई है तो पड़ रहा है, उसको कंट्रोल से संबंधित है, ये सारा का सारा संबंधित है इंटरनल वैलिडिटी से। यदि हम ये कहें तो प्रयोग के क्रम में की जाने वाली व्यवस्था और दोनों चरों स्वतंत्र और आश्रित के बीच किए जा रहे अध्ययन के क्रम में हम इस विश्वास को यदि उत्पन्न कर सकें कि कोई दूसरा प्रभाव नहीं है, जो प्रभाव हो रहा है प्रयोग के क्रम में वो सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का है, तो ये आपका संबंधित है इंटरनल वैलिडिटी से। आई रीड वंस अगेन। इंटरनल वैलिडिटी इज बेसिक मिनिमम विदाउट विच the outcome of any experiment is uninterpretable. It is concerned with making certain that the independent variable manipulated in the experiment was responsible for the variation in dependent variable. दूसरा, external validity is concerned with generalizability। यहाँ आप देखिए कि ये प्रयोग के क्रम में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच के रिलेशनशिप को कॉन्फिडेंस के साथ कह सके ये इसी के कारण हुआ है, जो डिफरेंस है, जो प्रभाव है, जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है, वो इसी के कारण है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और इसमें कह रहा है जनरलाइजेबिलिटी, मतलब हम जो जनरलाइज कर रहे हैं वो कहाँ जनरलाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप पे कर सकते हैं, सब ग्रुप पे कर सकते हैं, तो वो वैलिडिटी से रिलेटेड है। किस वैलिडिटी से? एक्सटर्नल वैलिडिटी से। सो एक्सटर्नल वैलिडिटी इज कंसर्न विथ जनरलाइजेबिलिटी। इट मीन्स टू व्हाट पॉपुलेशंस, सेटिंग, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स एक्सेट्रा द इफेक्ट कैन बी जनरलाइज्ड। मतलब कहाँ कहाँ जनरलाइज कर सकते हैं, कितना जनरलाइज कर सकते हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ जनरलाइज कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस पे कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी, बट एक्सपेरिमेंटल it has been found that the experimental situation, the laboratory experiment, the experimental method has high reliability in terms of high validity in terms of internal validity, and its external validity is a little bit less, and that is the weaker part from the point of view of validity of an experiment. So in this part we learn internal and external validity and meaning of validity
in experiment that is related to this. So the purpose of validity in an experiment is to control this secondary variable, and it is of two types, external and internal. Internal is related to the experimental condition, where we can say that the result is due to only independent and dependent variable, and this is related to generalizability. So this is all about this part of the lecture, that is validity of the experiment or a experiment.